Hello friends, in this video we will discuss a topic of material purchased and issue related to cost accounting. Now first of all, materials are received and kept in the stores very carefully by the storekeepers. But whenever these materials are required for the purpose of production, these are issued by the storekeepers. So in other words, I can say storekeeper issues the material in a very proper authorized way. Now there are different ways through which the materials can be issued. As we all know that the price of material, it keeps on changing. It will not remain static as there will be changes in the market conditions. The prices of material will keep on changing. Now the stock of material at one particular time in an organization may have different prices. How? Because some materials may be purchased at a different price, other materials may be purchased at a different price, but they are being kept in the store at one place. So similar material may also be having the different prices. So at what price the material should be issued whenever it is required for production? So what should be the price? So there are various pricing methods by which the material will be issued. Now broadly those different methods can be divided in three categories. First we can call it as cost price methods. As the name suggests, these methods will be based upon the cost prices of material. The second we may call it standard price methods. Here we will keep one standard and according to that the material will be issued. And third category of material issue may be classified as market price method. In this, whatever the price is being quoted in the market, we will issue the material accordingly. Now in the cost pricing methods, there are further various other methods. First is first in first out. In short, we can call it FIFO method. The material which will come first, it will be issued first. Second is LIFO method. It depicts last in first out. The material that will be coming in the last. जो material last में आएगा उसको हम पहले issue करेंगे. Then third is HIFO, highest in first out. इसमें जो material सबसे ज़्यादा है, maybe in quantity or maybe in price, उसको हम पहले issue कर देंगे. Then fourth important point is average price method. इसमें हम क्या करते हैं, मटीरियल को अकॉर्डिंग टू द एवरेज प्राइस, अगर कोई मटीरियल 2 रुपए का आया, कोई 3 रुपए का आया, तो दोनों का एवरेज 2 + 3/2 दैट इज 2.5 पर उसको इशू कर देंगे. इसी तरह से हम एक वेटेड एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम जो एवरेज निकाला है उसको वेट्स भी देंगे, हाउ मच इंपॉर्टेंट दैट मटीरियल इज, अकॉर्डिंगली वी विल इशू द मटीरियल. अनदर पॉइंट इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड. इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में जो आपका प्राइस है दैट विल बी इन्फ्लेटेड बिकॉज यू हैव गिवन certain extra facilities to your customers. So now another method can be specific price method. इसमें क्या है, हम एक specific price decide कर लेंगे, according to that we will be issuing. And the last one is base stock method, जिसमें हमारा base stock होगा, उसी price के ऊपर हम materials को issue कर देंगे. So these are the cost based pricing method. इनमें से जो important ones हैं that is LIFO, FIFO, HIFO, weighted average, average and inflated price method, and we will do the practical questions of these methods as well. Second category हमारे पास है standard price methods की. इसके दो parts हैं. First there are current standard price methods. इसमें क्या है, हम हर साल में एक current standard price fix करेंगे, accordingly we will issue the material. And second is basic standard price method. इसमें हम क्या है, हमने एक base ही रखा हुआ है that is fixed, according to that we will issue the material. And in market pricing methods we have further two methods, that is replacement price. ये वो प्राइस है जिसके ऊपर अगर आज आप मटेरियल को रिप्लेस करना चाहें तो किस प्राइस के ऊपर आप रिप्लेस कर सकते हैं. एंड सेकंड इज रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, in this we will quote the material according to the price which is realizable at present in the market. तो ये सारे हमारे जो हैं, that is a brief introduction of different methods. Now let us start with the FIFO method first. FIFO method को first in first out full form भी कह सकते हैं, and in some cases it is written first come first serve also. So FIFS, so एक ही बात है. So इसमें क्या होगा, materials are issued in the order in which they are received.
मतलब जो मटेरियल पहले रिसीव हुआ वो पहले इशू होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल लास्ट में रिसीव होगा वो लास्ट में इशू होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो भी आपके पास फीफो के केस में स्टॉक बचता है, क्लोजिंग स्टॉक, वो करंट मार्केट वैल्यू वाला बचेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पहले जो आया वो पहले निकल गया, तो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो आपका लेटेस्ट प्राइस का मटेरियल होगा। जो अभी लिया था वो बच जाएगा आपके पास, बाकी का आपने इशू कर दिया। सो इस मेथड की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सिंपल है ये ऑपरेट करना। इट इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो, जो पहले आया उसी को पहले सर्व करना चाहिए। और मटेरियल जो है इसमें हमारा जो स्टॉक है वो लेटेस्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली वैल्यू हो जाता है। सो वी कैन से दैट closing stock is always valued at the current market price, and this method is very useful when the prices of materials are falling. Okay, and this is suitable for bulky, slow moving, costly goods के लिए ये सबसे अच्छा method है। Now let us see the practical question of this method. Now let's see this practical question we are going to do. In this you have been given the data that following receipt and issue of materials were made in January 2011. This was the opening stock and these are the purchases made, then issues have been made. So we have to be very cautious about these dates, and we have to make a store ledger using the LIFO method, FIFO method, both the methods we are going to use in this. So we have to see that which date comes first. Accordingly we will be designing a store ledger. So जब भी आपने ऐसे questions करने हैं वहाँ पर आपको एक store ledger बनाना पड़ेगा जिसका फॉर्मेट इस तरह से होगा। नाउ दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ स्टोर लेजर अकाउंट। तो जब भी आपको मटेरियल इशू का क्वेश्चन आएगा ये आपने स्टोर लेजर अकाउंट ऐसे बनाना है। फर्स्ट कॉलम विल बी डेट, देन देर आर 3 मेजर पोर्शंस ऑफ दिस टेबल। फर्स्ट इज रिसीट, कब कब हमारे पास किस किस रेट पर मटेरियल आ रहा है, कब हमने इशू करा, किस रेट पर इशू करा, और हमारे पास अब बैलेंस में कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो जो अभी आपने क्वेश्चन देखा उसको सॉल्व करते हैं। उसमें फर्स्ट था हमारा पॉइंट जनवरी 1, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो जनवरी 1 की है। सो डेट में हमने डाल दिया जनवरी 1 एंड लिखा हुआ था ओपनिंग बैलेंस 80 यूनिट्स हैं एंड 1 रुपी के अकॉर्डिंगली। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स ने यहाँ पर डेट के साथ में पर्टिकुलर्स का कॉलम भी बनाया है। सो दैट विल शो डिटेल्स, लेट अस मेक दैट ऑल्सो। ओके, अब हमने यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम भी बना दिया। इसमें हम डिटेल शो कर सकते हैं कि हमारे पास गुड्स कब आई और कब गई। तो अब जैसे फर्स्ट में हमें बैलेंस गिवन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें आपको कोई टू या बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो कि हमारा ये बैलेंस है। अब क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 80 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर आपने रिसिप्ट कुछ नहीं किया, कोई रेट नहीं है, कोई इशू भी नहीं करा, बस आपके पास बैलेंस में गुड्स पड़ी हैं और गुड्स कितनी हैं 80 यूनिट्स हैं। और 80 यूनिट्स का हमें प्राइस गिवन है 1 रुपी, तो मैंने क्वांटिटी में लिखा 80, रेट में लिखा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरी अमाउंट बन जाएगी। सो ये मेरी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद आई विल हैव अ लाइन अंडर दिस सो दैट आई कैन शो कि ये मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इफ यू विल लुक एट द क्वेश्चन जनवरी 4, जो हमें सीक्वेंस में चलना है। आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू गो इन अ सीक्वेंस, जैसे जैसे डेट्स आएंगी। तो इशू नीचे गिवन है उस क्वेश्चन में और जनवरी 4 को इशू हो रहा है, तो यहां पर हम डालेंगे जनवरी 4। जब भी हम गुड्स को इशू करेंगे तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे रेक्विजिशन स्लिप नंबर। जब भी गुड्स इशू होंगी तो रेक्विजिशन स्लिप नंबर, और जब भी हमें गुड्स रिसीव होंगी तब हम लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। अब गुड्स इशू हो रही हैं, अब हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा है दैट इज ओनली 1 आइटम ओनली। तो अब ये हमें कह रहा है कि जनवरी 4 को 60 यूनिट्स इशू करनी है। तो अब इशू के कॉलम में आ गया 60 यूनिट। प्राइस क्या लगेगा, बिकॉज एक ही आइटम है, वैसे भी हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करना है, एक ही रुपया का आइटम है, तो 60 हमने ये इशू कर दिया। अब 80 में से 60 माइनस हो गया तो 20 यूनिट्स बच गई बैलेंस में, रेट वही है 1। अब ये आ गया मेरे पास 20 इंटू 1 करके 20। अब ये मेरी सेकेंड डे की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है जनवरी 7 को हमने परचेज करी है। नाउ लेट अस सी हम परचेज का कैसे करते हैं। जनवरी 7 यहाँ लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। कई बार आपको ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ दिखेगा GRN नंबर, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अब ये हमें कह रहा है कि 40 यूनिट्स हमें रिसीव हुई हैं, तो हमने क्वांटिटी रिसीव कर ली 40 यूनिट्स की। अब इनका प्राइस है 1.10। अब मैंने देखो इसको रिसिप्ट में लिखा है। सो 40 को अगर 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 44। अभी इशू कुछ नहीं करा। अब ये जो स्टॉक पड़ा है बैलेंस, ये पुराना है, इसको ऊपर लिखूंगी मैं।
जो नया खरीदा है उसको नीचे लिखूंगी मैं 1.10 के हिसाब से। इनको अलग अलग क्यों लिखे? बिकॉज दोनों का प्राइस अलग अलग है, सेम प्राइस नहीं तो इकट्ठा नहीं कर सकते हम इसे। अब ये मेरी थर्ड डे की ट्रांजेक्शन भी डन हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है जनवरी 9 को हमने 40 यूनिट्स इशू करे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 9 इशू कर रहे हैं तो यही वर्ड यूज होगा, रिक्विजिशन स्लिप नंबर। अब हमने कितने यूनिट्स इशू करे हैं? जनवरी 9 को इट इज 40 यूनिट्स। अब देखो क्वांटिटी में मैं लिखूंगी 40। अब 40 डायरेक्ट नहीं लिख सकते बिकॉज हमारा फिफो मेथड चल रहा है। फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो पहले 20 वाली यूनिट्स को आउट करते हैं, वो ₹1 के हिसाब से थी। बाकी की बची 20 यूनिट्स जो मुझे और इशू करनी है। टोटल मुझे 40 इशू करना है। तो इस प्राइस के ऊपर 1.10 के हिसाब से ₹22 की दूसरी यूनिट। अब टोटल मेरी 40 इशू हो गई, बट प्राइस दोनों का अलग अलग है। अब बचा क्या? ये तो पूरा यूज हो गया 20 का 20, 40 में से 20 यूज हो गया। अब 20 पड़ा है 1.10 के हिसाब से ₹22 का स्टॉक मेरे स्टॉक में शो करेगा। सो यहां पर मेरी डे 4 की ट्रांजेक्शन भी जो है दैट्स कंप्लीट। क्वेश्चन फिर से कहता है कि जनवरी 12 को हमने फिर से खरीदा। जब भी हम खरीदते हैं तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर आएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यूनिट्स कितनी रिसीव हुई है? दैट इज 60 यूनिट्स आपने रिसीव करी। तो ये मेरा परचेज रिसिप्ट का कॉलम है। 60 का प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.20। तो 60 इंटू 1.20 ₹72 जो है इसका मेरे पास स्टॉक एक नया आ गया। अब मैं स्टॉक में क्या दिखाऊंगी? 20 पुराना पड़ा है 1.10 के हिसाब से ₹22 का, ये नया आ गया 60 1.20 के हिसाब से 72। आपको ये अलग अलग शो करना है बिकॉज जब इशू की बात आएगी तब हमें फिफो मेथड अप्लाई करना है। अब ये मेरा 5th डे का ट्रांजेक्शन भी डन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपने इशू करा है ऑन जनवरी 14 को। 14th को हमने इशू करे हैं हाउ मेनी यूनिट्स? 40 यूनिट्स। यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अब हम लिखते हैं जनवरी 14 रिक्विजिशन स्लिप नंबर। क्वेश्चन में लिखे 14th जनवरी को हमें 40 यूनिट्स अगेन इशू करने हैं। तो यहाँ रिक्विजिशन स्लिप नंबर आ गया। अब यहाँ 40 यूनिट्स इशू होंगे, बट आई विल सी फ्रॉम माई बैलेंस। 20 अलग पड़ी है अलग रेट की, पहले उनको निकालते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। अब इसमें से भी 20 जाएंगी क्योंकि टोटल 40 इशू करना है। 1.20 के हिसाब से 24 और यहाँ पर 60 में से 20 चली गई तो मेरे पास 40 यूनिट्स बच गया 1.20 के हिसाब से। ये हमारे पास 4.48 रुपीज का जो स्टॉक है दैट विल बी रिमेनिंग एट द प्राइस ऑफ 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 22 जनवरी को हमने 72 यूनिट्स बाय करे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला तो पॉइंट खत्म हो गया। नाउ वी विल कम टू जनवरी 22। गुड्स रिसीव हुई हैं तो गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। नाउ क्वेश्चन सेज कि आपको यूनिट है 72, तो परचेज में आएगा 72 और रेट इन्होंने गिवन है 1.25 के साथ 9 आ जाता है। अब स्टॉक पड़ा है पुराना 40 यूनिट्स 1 के अकॉर्डिंग, एक नया आ गया 72 1.25 के अकॉर्डिंग 90 रुपीज हमारा हो गया। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट लिखना है कि अब जून 80 यूनिट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लिखते हैं जनवरी 30। जब भी रिक्विजिशन स्लिप नंबर आएगा, राइट, तो अब हमारे पास जो यूनिट्स जाने हैं दैट इज 80। अगर यहां देखो तो पहले मुझे जिनका प्राइस है 48 और मुझे टोटल 80 करना है तो मुझे यहां से भी 40 यूनिट्स निकालने पड़ेंगे 1 के अकॉर्डिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो आता है 50। तो ये स्टॉक इशू हो गया। अब मेरे पास बैलेंस इतना बचा 78 से 40 निकल गया, 32 बचा जो कि लास्ट वाला प्राइस है 1.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्टॉक कितना बचा, तो ये आपका स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक एट द एंड इज 32 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.25 एंड टोटल अमाउंट विल बी 40। So this is how you will preparing ledger in LIFO method. In next few videos we will see the LIFO method, average method, highest method, highest price method and inflation method. Thank you.